हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज एंड वेक्टर्स. So in today's lecture we'll be focusing on 3D geometry. The lecture is strictly based as per the revised CBSE syllabus for 2021 and I'll be covering the important questions along with few very important derivations. Fine. देखिए, most of the students are confused whether the derivations are important or not in 3D geometry. So I want to make it very clear in the beginning only. There are certain formulas that are easy to remember, like the equation of a line passing through a point and parallel to a given vector. You will easily be able to memorize this formula, but again there are certain formulas which you won't be able to remember if you are not aware of the backstory. By backstory I mean you have to be very particular about the process through which we have reached that particular conclusion. So in this particular lecture we will be discussing the derivation of the formulas that are difficult to memorize, because I guess once you are able to understand the backstory, the process of how the formula is derived, you will always remember it. Fine. So we'll be starting the lecture from the very first equation, which is the equation of a line passing through a point and parallel to a vector. Fine. Before memorizing the formula, it is important to visualize it. See, the entire 3D geometry is in three planes. It is easy to visualize a two-dimensional problem or a two-dimensional concept, but as we move on to the third dimension, it's not possible to make you realize it, make you visualize the actual picture. You have to have a particular concept through which you are relating things. So in this lecture we'll try to develop that concept. Now see, the first equation says you have to find the equation of a line passing through a point. That means in three-dimensional space there is some point from which a particular line is passing. Fine. And that particular line is parallel to some other vector. So what I have done is, this happens to be your point. This A is the point from which a line, this is the line under consideration, this line, and this line is passing through point A. Fine. And this line happens to be parallel to another vector. There is a vector B in space. This is the vector B that I am talking about. इस वेक्टर के पैरेलल है मेरी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए. ठीक है ना. अब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अनदर पॉइंट P ऑन द लाइन. फाइन. द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हैपेंस टू बी R and the position vector of point A is A. These are the position vectors. We already know what a position vector is. Position vector is the distance from the origin to a particular point or to a particular vector. Fine. The coordinates for A, P are given. It will be given in the problem that the coordinates of A are x, y, z, and the coordinates of B are A are x1, y1, z1, and for B are x, y, and z. Fine. Now one more thing is given. मैं वैसे बता रहा हूं जैसे प्रॉब्लम आने वाला है बोर्ड्स में. क्या होता है, sometimes you are given the vector in the form of direction ratios. यहां पर there is a clause. हो सकता है आपको दिया हो a line is parallel to a vector whose direction ratios are 2, 3 and 4. तो यहां पर the direction cosine वाला part comes into play. What I have done is I have taken the equation of vector B as AI plus BJ plus CK. Since we have already learned how to find direction ratios from the equation of a vector, we know that A, B and C are the direction ratios of vector B. ठीक है ना. तो अगर मेरे को वेक्टर B का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 दिया है तो मैं वेक्टर B लिख सकता हूं. वेक्टर B होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. तो मुझे सबसे पहली चीज तो ये मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस में चीजों को मैनिपुलेट करने वाला हूं. ठीक है ना. अब दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. R is equal to A plus lambda B, where lambda is some constant, a scalar value. Fine. Lambda is some constant, a scalar value. तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में आई एम गिवन द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग. अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा. मेरा लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर मेरे को दिया हुआ है
और जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो दिस विल बी माय इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ आई एम गिवन दैट माय लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, ऐसा भी तो हो सकता है दैट द क्वेश्चन सेज देयर आर 2 पॉइंट्स 5 6 7 एंड 2 3 4, find the equation of the line passing through these 2 points, या find the equation of the line in 3-dimensional plane which joins these 2 points, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे मैं इक्वेशन लिखूंगा, r is a plus lambda b minus a, fine, this is how we proceed. This is the equation of the line passing from a point and parallel to a vector. This is the equation of a line passing through 2 points, ठीक। अभी we have to understand the method through which we can write these equations in Cartesian forms as well. आपके सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन पूछता है, या कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्जन की भी बात करता है, तो वहां पर बच्चों कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। इट्स वेरी इजी, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। देखिए मेरा इक्वेशन कह रहा है, द इक्वेशन सेज r इज नथिंग बट इट इज a प्लस लैम्डा b, ठीक है ना। अभी r, a और b ये मैं तीनों डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा, r से कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर मेरा पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है x, y एंड z, तो वेक्टर r में लिख सकता हूं, कितना आएगा बच्चों, x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप प्लस z इंटू के कैप। क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ये x, y और z हैं, तो OP मैं लिख सकता हूं, इस OP का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा, A और B का वैल्यू मुझे मालूम है, क्यों मालूम है, क्योंकि A पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम है, तो A का वैल्यू भी मालूम है। कितना आएगा बच्चों, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही मुझे B का भी वैल्यू मालूम है, B का तो मेरे को सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में दिया हुआ है, तो a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है ना। अब अगर ये तीनों वैल्यूज मैं यहां पर पुट कर दूं, ठीक, मैं तीनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं, तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं i, j और k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दूं बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा, x विल बी x1 प्लस लैम्डा a, y इज इक्वल टू, या साइड में लिख दूं, y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा, एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा। तो यहां से आई कैन गेट एन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. So this is the Cartesian form of the equation passing through a point A whose position vector is given and parallel to another vector b, ठीक है ना। तो this is the Cartesian form, ये मेरा vector form है, this one, and this is my Cartesian form, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, बोर्ड्स में जब आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है तो उसमें से एक पार्ट होता है आइदर वो वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कराते हैं या कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कराते हैं, वो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा, दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अब अगर मेरा ये इक्वेशन है, ध्यान से देखेंगे, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखूंगा, तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसका आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. So this is the Cartesian form of this particular equation. Fine. I hope आपको ये चारों फॉर्म समझ में आ गई। देखिए मैंने 4 फॉर्म बताई अभी, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, इसी का कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, और इसी का कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अब इस पर फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, ये
पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो हम कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस एंड विच पासेस थ्रू पॉइंट दिस। अच्छा, पासेस थ्रू पॉइंट दिस का मतलब आपको ए के बारे में दिया हुआ है, पासेस थ्रू पॉइंट ए। अगर आप अपना डेरिवेशन याद करें तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये पॉइंट्स दिए हैं तो मैं वेक्टर ए लिख सकता हूं आराम से, ठीक। अगर मुझे पॉइंट्स दिए तो वेक्टर ए कितना आ गया, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये मुझे पॉइंट ए मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, पैरेलल टू दिस मतलब मुझे वेक्टर बी भी दिया है। वेक्टर बी कितना हुआ बच्चों, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। अब मुझे a भी दिया है, b भी दिया है, तो मुझे r निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, मैं r का वैल्यू निकाल सकता हूं। दिस विल बी 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। तो ये मेरा सीधे सीधे इक्वेशन हो गया। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो कह रहा है कन्वर्ट दिस इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां पर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करें जैसे मैंने डेरिवेशन बताया था। देखो यहां पर चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। क्या था डेरिवेशन में, डेरिवेशन में कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस पॉइंट P से लाइन पास हो रही थी उस पॉइंट P का मुझे पोजीशन वेक्टर R लिखना था। वो क्या था, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ रहा है तो आपको ये प्रोसेस करके दिखाना है। तो यहां पर वो डेरिवेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर 1 या 2 नंबर में आ रहा है तो आपको सीधे फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर मैं फॉर्मूला ना यूज करूं तो r की जगह ये वैल्यू रखूंगा, फिर i के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा, j के करूंगा, k के करूंगा। और अगर सीधे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे मालूम है इक्वेशन क्या आने वाली है, इक्वेशन आनी है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है ना। ये आने वाली है जहां पर a b c क्या है, a b c आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर जिसके पैरेलल में मेरी लाइन है। तो वो वेक्टर क्या है, ये है। तो यहां पर a b c की वैल्यू ये है। और x1 y1 z1 क्या है, x1 y1 z1 वो पॉइंट्स हैं जहां से लाइन पास कर रही है। तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं बच्चों, 5 -2 और 4। तो अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखूं तो ये आएगा x माइनस 5 अपॉन a कितना है 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 यानी कि y प्लस 2, b कितना है -1 इज इक्वल टू z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखो कंफ्यूजन तभी होता है जब आप लोग सीधे इक्वेशन रट लेते हो, ठीक, उसका पीछे का नहीं समझते कि आया कैसे। तो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये होता है कि भाई ए बी सी ये पॉइंट है या ये पॉइंट है। तो इट्स बेटर कि पूरा लेक्चर ध्यान से देखो। मैं बहुत शॉर्ट में सारे डेरिवेशंस बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। अब अगले जो दोनों क्वेश्चन हैं दोनों एग्जाम्पलर के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और बोर्ड्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, इनडायरेक्टली मुझे इक्वेशंस को इस्तेमाल करके कुछ कंडीशंस प्रूव करनी है। तो दूसरा पहला क्वेश्चन हो गया हमारा बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस क्रॉसेस द YZ प्लेन। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां उस पॉइंट के जहां पर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन YZ प्लेन को क्रॉस करती है, ठीक। तो पहली चीज क्वेश्चन देखते ही मुझे क्या समझना है भाई कि इन दोनों पॉइंट से क्रॉस करने वाली लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स? What is the equation of the line? Equation of the line is x minus x1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1
इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ठीक है ना, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब यहां पर मेरे को सारी वैल्यूज मालूम है, x माइनस x1, x1 इज 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज 1, y2 माइनस y1 इज 4 माइनस 1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1, ये किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर होता था। ठीक, अब देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आप मिस करते हो तो ये पार्ट क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट तभी याद रहेगा जब आपको मालूम है कि आपने कैसे इक्वेशन बनाई है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 5। दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक, अब लैम्डा का यूज समझो। देखो दूसरा पार्ट कह रहा है द लाइन क्रॉसेस द YZ प्लेन। अब बच्चों अगर कोई लाइन YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, ये मेरे x y z, अगर मेरी लाइन YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है मतलब यहां कहीं है, तो जब मेरी लाइन यहां कहीं होगी तब x से तो कोई लेना देना नहीं, x का तो कोई काम ही नहीं है भाई, x का उस समय कोई काम नहीं। तो उस समय when the line will cross YZ plane, when line crosses YZ plane, एक चीज तो फिक्स है कि x 0 होना चाहिए, x 100% 0 होना चाहिए। ठीक, अब समझो यहां से मैं x y और z की वैल्यू निकालता हूं। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 लैम्डा प्लस 5। ठीक है ना, एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस बिल्कुल करेक्ट हैं। चलो यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y कितना आएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 और z कितना आएगा, -5 लैम्डा प्लस 6। अब कंडीशन क्या है, देखो यहां से मुझे x y और z तीनों के टर्म्स में लैम्डा दिख रहा है। ठीक है ना, मुझे लैम्डा तीनों के टर्म्स में दिख रहा है। तो अब मुझे स्मार्टली ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा लैम्डा सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, मुझे डिसाइड करना है भाई कि मैं कौन सा लैम्डा सेलेक्ट करूं। अब यहां पर सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड पार्ट कहता है कि द लाइन इज क्रॉसिंग द YZ प्लेन। तो इफ द लाइन इज क्रॉसिंग द YZ प्लेन देन 100% द x वाला पार्ट शुड बी 0। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर लाइन क्रॉस कर रही है ये 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 है बच्चों तो x को 0 पुट कर दीजिए, तो -2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 5/2। ठीक है ना, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 5/2। अब लैम्डा वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन YZ प्लेन को क्रॉस करती है। अब लैम्डा की ये वैल्यू मैं इन जगह पे रख दूंगा, यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं लैम्डा की वैल्यू रख दूंगा और मुझे अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी x, y और z की। मुझे वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जहां से मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक, तो पहली चीज तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि x 0 होना चाहिए, तो लैम्डा को यहां पे रखते ही x वाला कोऑर्डिनेट तो आपको 0 मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे बच्चों, x वाले कोऑर्डिनेट में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलो अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो लैम्डा की वैल्यू 5/2 रखो, तो y इज इक्वल टू 3 × 5/2 प्लस 1 कितना आएगा, 15, 17। y इज इक्वल टू 17/2। ऐसे ही z का वैल्यू निकालो, z कितना आएगा, z आ जाएगा बच्चों -5 × लैम्डा था 5/2 एंड प्लस 6 तो -25/2 प्लस 6 -25 प्लस 12
डिवाइडेड बाई 2 -13/2, तो मेरा z कितना आ गया बच्चों, -13/2। तो ये वो 3 पॉइंट हैं जहां पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन YZ प्लेन को क्रॉस करेगी। ठीक है ना, अब देखा आपने क्वेश्चन कितना अच्छा था, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, CBSE का 4 नंबर का क्वेश्चन है और लॉजिकल है, केवल इक्वेशन रटने से काम नहीं चलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सेज शो दैट द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक, और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तो दोनों लाइंस पे लाई करना चाहिए, राइट है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो दोनों लाइंस पे लाई करना चाहिए। अगर मैं पहली इक्वेशन उठा लूं, पहली इक्वेशन कह रही है x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4। ठीक, इसको लेमडा के बराबर पुट कर दूं। अब लेमडा के बराबर पुट करने से होता क्या है, मुझे कोई पॉइंट मिल जाता है। वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3। ये कोई पॉइंट है जो पहली लाइन पे बच्चों लाई कर रहा है। मुझे लेमडा पुट करने से ये फायदा होता है कि मुझे वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट दूसरी लाइन पर भी लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो इस पॉइंट को उठा के दूसरी लाइन पे पुट कर देते हैं, x, y और z की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 4/5, ठीक, इज इक्वल टू y की जगह 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 1/2 और z की जगह लिख दूंगा 4 लेमडा प्लस 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 3/5 इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3। ठीक, मुझे ये दो वैल्यूज मिल गई, इनफैक्ट मुझे ये पूरी इक्वेशन मिल गई। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैं लेमडा की वैल्यूज निकाल के देखता हूं। अगर लेमडा यूनिक है, अगर लेमडा एक यूनिक वैल्यू देता है, कंसिस्टेंट वैल्यू देता है, तभी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पेयर्स में सॉल्व करता हूं, कोई भी दो पेयर उठाता हूं, देखता हूं लेमडा का क्या वैल्यू आ रहा है। ऐसा करते हैं, पहले 1 और 3 से उठाते हैं। तो 2 लेमडा माइनस 3/5 इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 3। तो कितना आएगा बच्चों, 2 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 20 लेमडा प्लस 15। ठीक, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, इसको उधर ले जाऊं तो 18 लेमडा इज इक्वल टू माइनस 18, तो लेमडा इज इक्वल टू -1। देखिए यहां से जब मैंने पहले और तीसरे पार्ट को सॉल्व किया तो मुझे लेमडा का वैल्यू मिल रहा है -1। ठीक, अब जरा दूसरे और तीसरे को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 लेमडा प्लस 6। ठीक है ना, तो ये कितना, लेमडा को उधर ले जाता हूं तो 5 लेमडा इज इक्वल टू -5, तो लेमडा इज इक्वल टू -1। तो अब आप देख रहे हो कि लेमडा का मुझे कंसिस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, यूनिक वैल्यू मिल रहा है। और लेमडा क्या था, लेमडा एक पॉइंट था जो इस लाइन पे लाई कर रहा था, और मैं क्या देखता हूं कि वही लेमडा इस पर भी लाई कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मान लेता हूं ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, एक पॉइंट है जो इस पर भी लाई कर रहा है और एक पॉइंट है ये इस पर भी लाई कर रहा है, और ये दोनों यूनिक लाइंस हैं, को ऐसी लाइंस नहीं है, एक ही लाइन नहीं है, दोनों अलग अलग लाइन है। देखो इक्वेशन अलग दिख रही है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है कि जब दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। देखो रिवाइज सिलेबस में अब वेक्टर 3D इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है, 17, 18, 20 नंबर का हो गया है। तो
इस पर आप यू कैनॉट बी कंप्लीसेंट ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। एनसीईआरटी में कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम है तो एग्जाम्पलर आपको रेफर करना ही है, तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्पलर के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, राइट। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की कब किन्हीं दो लाइंस के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए लेट्स चेक आउट। चलिए बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू डिस्कस, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब आर्टिकल डिस्कस करने से पहले देखिए, तीन तरीके की लाइन हो सकती है थ्री डायमेंशनल प्लेन में हमें जो पढ़नी है। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल है। और तीसरी होती है बच्चों स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब वो लाइन जो ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्ट कर रही है। अब टू डायमेंशनल प्लेन में स्क्यू लाइंस को या पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस को इमेजिन करना रिलेटिवली इजी है, बट थ्री डायमेंशनल प्लेन में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए सबसे पहले डायग्राम देखते हैं जिस पर हमें इक्वेशन डिराइव कर रही है। L1 और L2 ये मेरी दो लाइंस हैं, L1 और L2, ठीक है ना। और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो एक लाइन से दूसरे पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो जो दो परपेंडिकुलर्स पड़ेंगे या जो दो कॉमन परपेंडिकुलर होंगे दोनों लाइंस के बीच में, वही उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहां पर L1 और L2 के बीच में जो परपेंडिकुलर है दैट इज PQ। अब आप जैसे ही फिगर देखते हो आपको देख के ये एंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा, ये आप 90 डिग्री इमेजिन कर पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हो जाती है कि आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा कि कैसे थ्री डायमेंशन में ये PQ दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसके लिए मुझे एक आई नीड समवन, मैम प्लीज इफ यू कैन हेल्प। देखिए ये दो लाइंस हैं, आ जाइए वीडियो पे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये दो लाइंस हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन्स में, ठीक है ना। और मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर ये एक ही प्लेन में होती, अगर मैं ये दोनों लाइन ऐसे कर दूं तो आप कह सकते हो, आप समझते हो कि ये पैरेलल है। बट अगर डायग्राम में आप जैसे देखो L1 और L2 आपको देखने में नहीं लग रही है कि ये पैरेलल हो सकती हैं। तो है क्या, L1 और L2 ये दो लाइंस दो अलग अलग प्लेन्स पे हैं और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब मैं ये दोनों लाइन टू डायमेंशन में बनाऊंगा तो मैं इनको ऐसे तो नहीं बना सकता, ऐसे नहीं बना सकता क्योंकि ये एग्जैक्टली पैरेलल तो है नहीं, है ये दोनों अलग अलग प्लेन्स पे, बट मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो ये पहली लाइन है जो किसी दूसरे प्लेन में है, ये दूसरी लाइन है जो किसी दूसरे प्लेन पे है, और ये PQ है बच्चों, दिस इज PQ। ध्यान से देखेंगे, दिस इज PQ, ठीक। ये इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये PQ है। ये जो आपको यहां पर, मैम थोड़ा इधर आ जाइए, ये जो डायग्राम में आपको PQ दिख रहा है, ये PQ ये है, दिस इज दिस PQ, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब AB क्या है, AB वो लाइन है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है जहां से ये लाइंस पास हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन A2 से पास हो रही है, ये लाइन A1 से पास हो रही है, ये लाइन B2 के पैरेलल है, ये लाइन B1 के पैरेलल में। तो अगर मैं मान लूं कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स है, ध्यान से समझेंगे, ये इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये A2 है, दिस पॉइंट इज A2, और ये इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये A1 है। या अगर मैंने इसको लाइन 1 माना है तो दिस इज A1, दिस इज A2। तो ये जो वेक्टर आ रहा है मेरा, ये वेक्टर बच्चों मेरा क्या है, दिस वेक्टर इज AB। अब ध्यान से देखेंगे, दिस वेक्टर इज AB, और ये जो आपको दिख रहा है ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और मैं जानता हूं कि मैं किसी भी वेक्टर को पैरेलल मूव करा सकता हूं। तो इस AB वेक्टर को मैं अगर ऐसे मूव करा दूं, ऐसे, ध्यान से देखेंगे, ये PQ है, ये मेरा PQ है, दिस रेड पेन इज PQ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज AB, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है जहां से लाइन स्टार्ट हो रही, और मैं AB को मूव कराते कराते यहां तक ला सकता हूं। यहां पर जब मैं लाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, थैंक यू मैम, यहां पर जब मैं लाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये एक एंगल बना रहे हैं, ये एंगल,
दिस एंगल इज थीटा। अब देखो कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने इस AB को पैरेलल मूव कराया, पैरेलल मूव कराते कराते मैं इसको यहां ले आया ये, और यहां पर मैंने कह दिया कि ये एंगल है बच्चों थीटा। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये भी एक्चुअली AB ही है। तो आई होप आपको विजुअलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाए तभी आप इसको समझ पाओगे बच्चों, वरना नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो PQ क्या था, PQ वो परपेंडिकुलर था जो L1 और L2 पे था। तो क्या मैं लिख सकता हूं, PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, राइट। क्लियर है, मैंने आपको फिगर में भी दिखाया कि PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। दूसरी चीज क्या है बच्चों, L1 इज, दिस इज L1 इज पैरेलल टू B1 वेक्टर। L1 मेरा B1 वेक्टर के पैरेलल है, ये मैं पुराने आर्टिकल से लेके आ रहा हूं। ऐसे ही L2 इज पैरेलल टू B2, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। L2 इज पैरेलल टू B2, L1 is parallel to B1, L2 is parallel to B2 and PQ is perpendicular to both L1 and L2, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, L1 लाइन मेरी B1 के पैरेलल है, ये L1 है ये B1 है, ऐसे ही ये L2 है ये B2 है, लेकिन PQ is perpendicular to both L1 and L2। तो क्या मैं इसको अगर इक्वेशन 1 बोलूं, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूं, देखो PQ L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, L2 B2 के पैरेलल है, L1 B1 के पैरेलल है। तो क्या PQ B1 और B2 के भी परपेंडिकुलर नहीं हुआ? ध्यान से सोचो, मतलब A is parallel to B, C is parallel to D and F is perpendicular to AB, तो F is perpendicular to CD as well। भाई ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड कर दूं PQ वाली, तो ये इन दोनों के भी तो परपेंडिकुलर हुआ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से बच्चों मैं लिख सकता हूं दैट PQ is perpendicular to B1 and B2 also। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन गलत कर दो, केवल याद करके ये पार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा ही प्लेन्स में भी है, PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक रूल पे। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, अगर दो वेक्टर्स A और B हैं तो A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है। अगर मैं आपसे बोलूं B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2, तो क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है। ये तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक रूल है कि B1 क्रॉस B2, B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। लेकिन PQ भी दोनों के परपेंडिकुलर है। फिर से समझो, B1 क्रॉस B2 भी B1 B2 के परपेंडिकुलर है और PQ भी B1 B2 के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर B1 ऐसा है B2 ऐसा है तो B1 क्रॉस B2 भी, ये B1 क्रॉस B2 कुछ है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये PQ है ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि PQ एंड B1 क्रॉस B2 आर पैरेलल, लिख सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि आप पैरेलल, या लिख सकता हूं आर इन सेम डायरेक्शन। बच्चों ध्यान से नोट करते चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर ये समझ में आ गया तो आपको इसके क्वेश्चंस जो अभी तक सबसे टफ लगते हैं वो सबसे आसान लगने लगेंगे। यही चीज प्लेन्स के साथ भी होने वाली है। PQ एंड B1 B2 आर इन सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में है, दोनों या तो सेम डायरेक्शन में है या मैं कह सकता हूं कि लगभग पैरेलल ही चल रहे हैं। जिस भी प्लेन में है ये दोनों पैरेलल ही हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं द डायरेक्शन ऑफ B1 क्रॉस B2, ये मैं कैसे निकालूं?
अगर मुझे किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो मुझे क्या निकालना है? बहुत बेसिक है ये वेक्टर का भाई, मुझे तो यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 का डायरेक्शन क्या होगा भाई? यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये हम सभी लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, b1 क्रॉस b2 कर दो डिवाइडेड बाई मॉड b1 क्रॉस b2 कर दो। इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये मुझे यूनिट वेक्टर दे देगा। मतलब मैंने b1 क्रॉस b2 का डायरेक्शन निकाल लिया, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि pq और b1 क्रॉस b2 एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या यही डायरेक्शन pq का भी नहीं हुआ? ऑब्वियसली pq का भी यही डायरेक्शन हुआ। अब मेरा आर्टिकल था कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मैंने pq माना था, मान लेता हूं कि pq इज इक्वल टू d है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज d। ठीक, अब देखो मुझे pq का मैग्नीट्यूड मालूम है, कितना है? d। मुझे pq का डायरेक्शन मालूम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं वेक्टर pq इज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये बेसिक रूल है वेक्टर का, ये वेक्टर का बच्चों बेसिक रूल है, लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज देखो, अभी मैंने आपको विजुअलाइज करके बताया था कि ये एंगल थीटा है, ठीक, मतलब PQ और AB के बीच में, ये मैं रब कर रहा हूं, PQ और AB के बीच में एंगल कहीं ना कहीं थीटा है, ठीक। तो थीटा कैसे निकाल सकता हूं बच्चों? cos थीटा इज PQ डॉट AB डिवाइडेड बाई मॉड PQ मॉड AB डॉट प्रोडक्ट रूल। ये मेरा डॉट प्रोडक्ट रूल है, ठीक है ना, यही मेरा डॉट प्रोडक्ट रूल है। अच्छा, क्या मैं PQ जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं, ये जानता हूं। क्या मैं AB जानता हूं? बिल्कुल जानता हूं। कैसे नहीं जानूंगा भाई? AB क्या था? अभी मैंने आपको, जब मैम आई थी तो मैंने आपको फिगर बताया था, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता AB इज A2 माइनस A1? भाई पोजीशन वेक्टर का यही रूल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो AB फाइनल क्या है? A2 से पास हो रही थी, इनिशियल क्या है? A1 से पास हो रही थी। तो भाई मेरे पास वेक्टर AB है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जरा ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, देखते हैं मुझे क्या मिलता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। cos थीटा की वैल्यू जब पुट करते हैं तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? PQ इज D इंटू एन कैप, ठीक, इंटू AB इज A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड PQ इंटू मॉड AB। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहीं पर पूछ सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहां पर डाउट होना चाहिए। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है एन कैप की, यहां पर मुझे एन कैप की वैल्यू पुट करनी है। तो एन कैप मैंने यहां पर निकाला था, जो मैंने रब कर दिया है, D इंटू एन कैप क्या था बच्चों? B2 क्रॉस B1 डिवाइडेड बाई मॉड B1 क्रॉस B2। ये B1 क्रॉस B2 था, देखिए B1 क्रॉस B2 और B2 क्रॉस B1 दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो यहां पर गलती नहीं करेंगे। ये मैंने n का वैल्यू रखा है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। दिस इज A2 माइनस A1। अच्छा, मॉड ऑफ PQ क्या है भाई? मॉड ऑफ PQ क्या है? D ही तो है भाई, PQ का डिस्टेंस मैंने D माना है, तो ये D है, इसको मॉड ऑफ AB कर देते हैं, तो यहां से D गेट्स कैंसल्ड। तो मुझे cos थीटा का वैल्यू कितना मिल गया? cos थीटा इज B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इंटू मॉड ऑफ AB। मॉड ऑफ AB लिख दो या AB लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब जरा इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज cos थीटा, इस ट्रायंगल में cos थीटा का वैल्यू कितना है? तो cos थीटा इज PQ अपॉन AB है,
तो पी क्यू क्या है? पी क्यू इज ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा मैं यहां से निकाल के आया हूं, ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो क्या आ जाएगा? ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ध्यान से इस वैल्यू को जरा देखिए, क्या मुझे यही वैल्यू नहीं मिलेगी? चेक इट आउट। यही तो मुझे निकालना था भाई। ये PQ है क्या? यही तो D है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है ना? तो देखो ये फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली यूज करते हो। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको याद है। बट बहुत से बच्चे भूलते हैं, और जेन्युइन भी है, भूलेंगे भी। केवल तब नहीं भूलेंगे जब आपको पता है कि ये आया कहां से है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ये जनरल फॉर्मूला था। फाइन, दिस वाज द जनरल फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हमने स्टार्ट किया था इस क्यू लाइन से, ये भी मैं आपको बता दूं, हमने स्टार्ट किया था इस क्यू लाइन से। अब इसी डिस्कशन को मैं पैरेलल लाइंस के लिए जनरलाइज भी कर सकता हूं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मेरी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है ना? इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकता हूं। मैं शॉर्ट में बता देता हूं कैसा आएगा। x2 माइन डिनोमिनेटर में आएगा, x2 न्यूमरेटर इधर एक x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x2 x1, y1 y2 एंड z1 z2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। देखो दो तरीके हैं, या तो याद कर लो, वो बेटर है क्योंकि बहुत लेंथी फॉर्मूला है, डिराइव नहीं कर पाओगे। वैसे प्रोसेस यही है। ठीक है ना? दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक बार इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकाल ले जाते हो तो वहां से आप कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला, इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसको याद कर लेंगे। ठीक है ना? उसको याद कर लीजिएगा, लेंथी फॉर्मूला है। अगर याद होगा तो फटाफट से, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं साइड में लिख दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप याद जरूर कर लें। ठीक है ना? अच्छा, यही अगर मैं बोल दूं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर यही दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हो जाती तो क्या होगा? मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सीधे। अगर मेरी यही दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी बच्चों, तो मेरे डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे उसको। कितना हो जाएगा? B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉड B, दिस विल बी माय डिस्टेंस। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो इसको याद करना बहुत आसान है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है आपको दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, बट आपको दिया नहीं होता कि वो स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लाइंस की इक्वेशन को एग्जामिन करना है, देखना है। अच्छा, देखेंगे कैसे भाई? A1 प्लस लैम्डा B1, A2 प्लस लैम्डा 2 B2, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है। यहां से इंस्पेक्शन होगा। अगर B1 और B2 किसी स्केलर से, B1 इज इक्वल टू म्यू B2, अगर ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है तो वो लाइंस पैरेलल है। ठीक? अगर लाइन पैरेलल है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। इसको याद रखना आसान है अगर ये समझ में आ गया है। ठीक है ना? और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, ये डिस्टेंस मॉड में है, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव डिस्टेंस हो नहीं सकता, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड में है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, these are the two questions that we have to do। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। The question says, मैंने दो टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको इन्हीं दोनों टाइप में से एक मिलना है आपकी बार बोर्ड एग्जाम में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है ना? आपको दो लाइन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में। यहां पर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, हो सकता है ये कार्टेशियन फॉर्म में भी दी हो। ये दोनों इक्वेशंस आपको एग्जाम में कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है।
तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो दो तरीके हैं, पहला वो जो फॉर्मूला था बड़ा वाला x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट b1 c2 minus c1 b2 का समेशन का होल स्क्वायर। या तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड लगाइए सीधे और वैल्यू निकालिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। दोनों कार्टेशियन फॉर्म्स को मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये श्योर शॉर्ट तरीका है। आपको अगर दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और लाइंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हैं, आपको फॉर्मूला नहीं याद या एग्जाम देते समय कंफ्यूजन हो गया कि सर यहां b1 था या वहां b2 था, कोई बात नहीं, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो याद ही होगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था और एक बार आप वेक्टर फॉर्म में आ गए तो जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही खास बात है वेक्टर और 3D की कि सभी फॉर्मूले एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको डेरिवेशंस पता है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, दो लाइंस दी हुई हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो पहली लाइन मेरी क्या हो सकती है, मेरी पहली लाइन है, पहली लाइन से मुझे a1 का वैल्यू मिल गया i प्लस 2j प्लस 3k, ये मैंने फर्स्ट लाइन से उठाया, और यहां से मुझे b1 का वैल्यू मिल गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है ना। ये मुझे L1 से मिल गया। जरा L2 से देखते हैं क्या मिल रहा है। L2 को अगर मैं एग्जामिन करता हूं तो मुझे दिखता है यहां से मुझे मिल रहा है A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू है बच्चों 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ऐसे ही B2 का वैल्यू है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है ना। तो मेरे पास a1 a2 b1 b2 मिल गया। अब मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो अगेन मुझे देखना है b1 b2 में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों पैरेलल हैं या पैरेलल नहीं है, व्हाटएवर। तो यहां तो मुझे दिख रहा है कि b1 is 2 times of b2, और रूल क्या कहता है, if b1 is lambda b2 where lambda is any scalar then b1 and b2 are parallel। तो यहां तो b1 b2 पैरेलल है, तो अगर b1 और b2 पैरेलल है तो चीजें बहुत आसान हो गई। क्यों आसान हो गई भाई, d is b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई मॉड b का मॉड, दिस विल बी द डिस्टेंस। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं बच्चों। a2 माइनस a1 क्या आएगा, 2i माइनस i is i, 4j प्लस j is 2j, 5k माइनस 3k is 2k। तो यहां से मुझे a2 माइनस a1 मिल गया, ठीक है ना। अब दूसरा कंफ्यूजन, बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि सर ऐसे में मैं b इसको लूं या इसको लूं। देखो, जब कभी भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक द इक्वेशन जिस पर कोई मल्टीपल ना हो। तो इस वाली इक्वेशन पे दिस इज b2 is 2 times of b1, तो हमेशा b1 को ही b लेंगे, या जो छोटी इक्वेशन है जिसपे मल्टीपल नहीं है। अगर आप दूसरे को ले लोगे तो भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट डिस्टेंस में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ सकता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक b1 एज b। तो b का वैल्यू मुझे मालूम है, b अब की बार कितना है बच्चों, b इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मेरे पास b है, मेरे पास a2 माइनस a1 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले करना है b का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a2 माइनस a1 से। तो कैसे निकालेंगे, i j k, पहले b वेक्टर लिखेंगे, b वेक्टर क्या है 2 3 4, फिर a2 माइनस a1 वेक्टर कितना है 1 2 2, ठीक है ना। एक बार मैंने ये वैल्यूज रख दी तो मेरा क्वेश्चन अब रिलेटिवली बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों हमें क्वेश्चन करना है, ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, उतना मुश्किल नहीं है। यहां से आप निकाल सकते हो उसका वैल्यू, दिस विल बी i 6 माइनस 4 is 2 प्लस j में कैसे करते हैं, माइनस j का प्लस j, 4 माइनस 2 is 2, k is 4 माइनस 3 is k। तो यहां से आपको i j k मिल गया। यहां से आप मॉड ऑफ b निकाल सकते हो, मॉड ऑफ b कितना आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। सारी वैल्यूज निकाल के खाली आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखना है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग टाइप 1 क्वेश्चन। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपको बेसिक्स पता है वेक्टर के तो बहुत आसान है।
चलिए टाइप 2 देखते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ऑलरेडी लेंदी हो गया है, बट बच्चों अगर आपने पूरा देख लिया तो 100% 4 से 6 नंबर हैं आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में। मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है और एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, तो जिन्हें नॉलेज चाहिए उनके लिए भी फ्रूटफुल है, जिन्हें ऑब्वियसली शॉर्टकट के साथ पास होना है उनके लिए भी फ्रूटफुल है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम दिस एंड पैरेलल टू दिस, मतलब एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो जरा इस लाइन को पहले डिकोड करते हैं। इस लाइन में अगर मैं a1 प्लस न्यू b1 इस फॉर्म में लिखूं तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 2i प्लस 4j प्लस सॉरी ऐसे करते हैं a1 इंटू b1 वेक्टर प्लस 5k, साथ में मुझे b1 वेक्टर मिल गया कितना 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो अब मुझे एक्चुअली करना क्या है, अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो यहां से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं भाई इस लाइन के पैरेलल मुझे निकालनी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। मैंने कह दिया कि इस लाइन को मैंने ब्रेक कर लिया बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने अभी पढ़ी थी। इस लाइन को जब मैंने ब्रेक किया तो यहां से मुझे एक वेक्टर मिल गया b। अब एक ऐसी इक्वेशन जो यहां से पास हो रही है और इसके पैरेलल है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो वो तो बहुत आसान है, मेरे को मालूम है r इज इक्वल टू a इज 2i प्लस 3j प्लस 2k प्लस लेमडा, लेमडा में क्या आ जाएगा दिस वन 4i प्लस 6j प्लस 8k। अगर मैं इसको R2 बोल दूं, इसको मैं R1 बोल दूं, तो ये मेरी R1 लाइन हो गई, ये मेरी R2 लाइन हो गई, और मुझे इन दोनों लाइंस के बीच का पैरेलल डिस्टेंस निकालना है। अच्छा यहां तो केवल इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी, अगर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दे देता आपको, अगर इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इनफैक्ट देगा ही, बोर्ड एग्जाम में ये देगा ही। तो अब ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बन गया बच्चों। देखा आपने कैसे दूसरा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम पहले क्वेश्चन के फॉर्म में ले आए। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लाइन से इस तरीके के क्वेश्चन के आने की इस साल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है ना। तो आई होप आपको लाइंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। आई हैव ट्राइड टू take all the important questions from the board point of view. As I always say, in case you have found the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. अगला लेक्चर हमारा प्लेन्स पे होगा, वो भी इतना ही इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, जहां मैं आपको फॉर्मुलेस की बैक स्टोरी भी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी कराऊंगा। टिल देन, stay healthy, stay safe and most importantly, study well. Thank you.